In this video, I am going to discuss the hot questions. Hello everyone and welcome back to my channel Students Guide by SZ. I am here to improve your level of Hindi. Please like, share and subscribe my channel and even press bell icon for my new update. So, let's seize the day. Now, what are the hot questions in Hindi? It means these questions are not from the textbook, means the questions are not given in the textbook. They will just give you the poet name and ask the question. Or they will ask your favorite poem or your favorite chapter. Okay? And the most important thing, they will merge two character of the different chapter. Or sometimes two chapters from the textbook and frame the question. The first question. पंत प्रकृति चित्रण के सर्व उत्तम कवि है. इस वाक्य की सत्यता को अपने शब्दों में स्पष्ट करें. The word meaning Pant. Pant means poet Sumitranandan Pant. Prakriti Chitran, the description of nature beauty. Sarva Uttam means the best. Satyata means reality or truth. Spasht kare means to explain. Now let's see the complete meaning. Pant means Sumitra Nandan Pant has been considered the greatest poet of nature depiction. That means describing. Justify this statement in your own words. In short, I can say Pant is the greatest poet for describing nature. Explain this in your words. For this answer, the keywords or the important points are the Prakriti Chitran, means the description of nature. Second, the pattern of Sumitra Nandan Pant, the writing pattern of Sumitra Nandan Pant. So that is Manviya Karan. Manviya Karan means personification. And the important sentence is, if you read his poem in the classroom also, then you will feel the wall of the classroom has been disappeared. Go. The answer. सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं पढ़ते हुए हमें यही अनुभूति एक्सपीरियंस होती है, खासकर पर्वत प्रदेश में पावस, जैसे मानो हमारे आसपास के सभी दीवारें विलीन हो गई हो. विलीन मीन्स डिसअपियर. कवि से मानवीयकरण का उपयोग करके, मानवीयकरण मीन्स पर्सोनिफिकेशन, प्रकृति का बहुत अच्छा और स्पष्ट चित्रण किया है. हमें ऐसा अनुभव महसूस होता है जैसे हम किसी ऐसे पर्वतीय क्षेत्र पर पहुंच गए हो. हम किसी ऐसे पर्वतीय क्षेत्र पर पहुंच गए हैं जहां पहाड़ मेखला आकार जैसे लगते हैं और झरने पहाड़ की प्रशंसा कर रहे हो. प्रशंसा मीन्स प्रेजिंग. आंसर. सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास के सारे दीवारें कहीं विलीन हो गई हो. विलीन मीन्स डिसअपियर. हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़
हजार हजार आँखों से अपना विशाल आकार निहारता है। विशाल आकार, ह्यूज मीन्स ह्यूज इम्प्रेशन। निहारता है, शाल के वृक्ष भयभीत लगते हैं। आकाश में बादल ही बादल छा गए हैं। कवि ने कल्पना की है कि अचानक बादल ऐसे उड़े मानो समूचा पहाड़ एक पक्षी के समान बादलों में पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ चला हो। पंत ने मानवीयकरण मीन्स पर्सोनिफिकेशन अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। इसलिए पंत प्रकृति चित्रण के सर्वोत्तम कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यता, कविता और अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव एक ही है, स्पष्ट कीजिए। मनुष्यता, दैट इज द पोएम, एंड दिस इज द चैप्टर, अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले। केंद्रीय भाव मीन्स सेंट्रल आइडिया and spasht kijiye means explain. Let's see the complete meaning. Meaning, there is one central idea means emotion of poem Manushyata and chapter अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले. Explain it. Okay. The important or the keywords are: first, you have to describe the central idea of Manushyata, the poem. Then, that is charity, merciful, and sympathy. Then, you have to describe the central idea of अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले. That is the chapter. That is sympathy and merciful towards nature. An important thing is only then you have to mention the difference between that one is focusing on helping the human being, other is inspiring us to take care of the nature. The answer, मैं इस कथन से सहमत हूँ. सहमत हूँ मीन्स एग्रीड. दोनों पाठ हमें परोपकारी मीन्स चैरिटी, हेल्पिंग अदर्स, दयालु, मर्सीफुल तथा सहानुभूति मीन्स सिंपैथी के भाव रखने के लिए कहता. हम एक दूसरे के दुख को हरना चाहिए. दोनों पाठ में हमें लेखक की माँ, रतिदेव आदि उदाहरण से दूसरों की मदद करने का संदेश मिलता है. संदेश मीन्स मैसेज. ऐसे पाठों में सिर्फ एक अंतर है. इन पाठों में सिर्फ एक अंतर है कि एक मनुष्य के प्रति परोपकारी होने का संदेश देता है और दूसरा प्रकृति के प्रति परोपकारी होने का संदेश देता है. आंसर, मनुष्यता कविता के केंद्रीय भाव है कि हम परोपकारी होना चाहिए. हमें परोपकारी होना चाहिए. परोपकारी मीन्स हेल्पिंग अदर्स, चैरिटी. हमें स्वार्थ त्याग कर, स्वार्थ मीन्स आवर बेनिफिट, ओन बेनिफिट, त्याग कर ऐसा काम करना चाहिए जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां हमें याद कर सके. हमें स्वार्थ त्याग कर ऐसा काम करना चाहिए जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां हमें याद करे. अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव यह है कि हमें प्रकृति को बचाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि
प्रकृति में आए असंतुलन का कारण हम ही हैं। असंतुलन मीन्स इम्बैलेंस। हमें पेड़ पौधों, जानवरों और समुद्र से उनकी ज़मीन नहीं चुराना चाहिए। दोनों पाठ का केंद्रीय भाव एक ही है, एक जैसा ही है, परंतु मनुष्यता में मनुष्य को मदद करने का प्रेरणा दी है। और अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले में, दैट इज़ द चैप्टर नेम, में पूरी प्रकृति और जीव जंतु मीन्स ऑल द अदर लिविंग बीइंग की सुरक्षा, फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर देयर सेफ्टी, फॉर देयर प्रोटेक्शन करने की प्रेरणा दी है। प्रेरणा मीन्स इंस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े भाई साहब कहानी में छोटा भाई कक्षा में लगातार प्रथम आकर भी अपने असफल होने वाले भाई साहब का पूरा सम्मान करता है। इसके पीछे निहित मूल्यों की समीक्षा कीजिए। वर्ड मीनिंग: लगातार, कंटिन्यूस, प्रथम, फर्स्ट, असफल, अनसक्सेसफुल, फेल, सम्मान, रिस्पेक्ट, निहित मीन्स बिहाइंड, मूल्य, वैल्यू, समीक्षा कीजिए, डिस्कस। The meaning of the question: even though younger brother continuously got first in class, he still respect his elder brother who failed. So, what are the values behind this? Discuss. The keywords or the important points are: first, the elder brother fails due to the poor education system. Second, the younger brother knows that the elder brother is having more life experience. The third point is the younger brother knows that elder brother is very much caring for him. Now the answer. बड़े भाई साहब कहानी में हम परिश्रमी बड़े भाई साहब और रट कर प्रथम आने वाले छोटे भाई से मिलते हैं। बड़े भाई बार बार असफल होने के बावजूद छोटा भाई उनका सम्मान करता है, क्योंकि बड़े भाई को दुनिया की ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा समझ है। छोटा भाई ये समझते हैं कि बड़े होने के कारण बड़े भाई अपने भाई का सही रास्ता दिखाना चाहते थे। वे सोचते हैं कि बड़े भाई को उसे उपदेश देने का पूरा हक है। छोटा भाई बड़े भाई साहब का आदर करता है। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को अनुभव और बड़प्पन का महत्व समझाया है। इन युक्तियों को सुनकर छोटे भाई का हृदय प्रभावित हो गया और उसे बड़ा होने का कारण अपने बड़े भाई पर पूरी श्रद्धा हो गई।